स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इधर हास्केल चल रहा है, प्रोलॉग चल रहा है. देयर आर एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. सो द कॉमन क्वेश्चन इज लाइक कि इतने सब लैंग्वेज का करना क्या? Why we need all these languages? So today I'm going to answer that question. Why so many languages are there in a syllabus? Okay, class. Hello. Am I audible, class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So एक स्टूडेंट ने मुझे ज़बरदस्त मस्त बोला था एक बार ऐसा पुणे में, मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन पुणे, कि सर ये लोग सिलेबस सेट कैसे करते हैं? अब पार्टी के टाइम पे सिलेबस सेट करते हैं क्या मस्त ऐसा हाई होके वगैरह? मैं बोला ऐसा कुछ होता नहीं है. तो इज लाइक कि सर सिलेबस देख के तो ऐसा लग रहा है कि लोग हाई थे और सिलेबस सेट हो गया. हम से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, सिलेबस प्रॉपरली सेट होता है, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट. सो आई एक्सप्लेन दैट स्टूडेंट कि उस सब्जेक्ट का लॉजिक क्या था. एंड देन ही इज लाइक कि ओके हमको इतना पता नहीं था. तो ही वाज थिंकिंग दैट तो अपने सब्जेक्ट का भी ऐसा ही कुछ है. इट्स लाइक देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आफ्टर दैट दे डिसाइडेड कि हाँ ऐसे सिलेबस सेट करते हैं. इट वाज नॉट लाइक कि हर एक लैंग्वेज पे एक यूनिट रखना, मतलब they were not high on something like that. Okay. uh, Class, are you there? Are you listening? Yes, sir. Okay. Thank you, beta. So see, there are many languages in our subjects, like so let's say C. There are concepts related to C++ or Java. Then there are concepts related to Haskell, then Prolog. Then there is something related to concurrency, and finally there is something related to web application development. So in this, there are concepts like server side programming and client side programming. So why everything is put together, and why they are talking about what are the benefits, what are the ideas behind that, and all. So today we are going to discuss that. So why so many things in one at one place? See, nowadays there is no single application in this world which is developed either using only Haskell, or which can be only developed using a Haskell or a Prolog, or only using Java, or only using this web applications languages like PHP or AngularJS or Node.js. You cannot develop anything using only one part. There is nothing that you can develop using only one part. Even Amazon is not only a web application. It deals with n number of concepts. Hello, class. Yes, sir. Okay. Thank you, madam. Huh. So, for how many seconds I was not audible? So you were audible. Okay, thank you, madam. Huh. So, even though you are talking about Amazon ना, Amazon अपने को लगता है कि mobile app है, but it is not a simple mobile app. There is a server side, and in behind server side there are technologies like Java. There is something like concurrency control they are using. Haskell and Prolog will not comment कि कौन Haskell use करे कौन Prolog use करे, but yes, this thing can be used. First, let me give you one example. There was a problem statement. I was guiding a team for Smart Int Hackathon. Something called a Smart Int Hackathon. This is a hackathon normally takes every year. So where teams are selected from all over the world for, not all over the world, sorry, for all over the India, including IITs and NITs for final round. So for every problem statement, there are 6 teams selected normally, as far as my knowledge is concerned, and those teams are selected for final round for software category, and from one of those 6, one is selected as a winner. So in one category, I was guiding one team who was selected as a finalist for Smart India Hackathon.
So there, our problem statement was something like this. We wanted, they asked us that we are supposed to have a mobile application and web application. Pay attention, we are supposed to have web application and a mobile application for that particular problem statement. But mobile application or web application was not alone capable of satisfying the requirement, because they wanted some predictive analysis. And the moment you say predictive analysis, we were having only two options. Either we can develop that predictive analysis using Java or Python. Then definitely they wanted some database, so अलग से database का वगैरह concept था. Then what they wanted is, they wanted some rule base, to develop some rule base. So to develop the rule base means what? It was a medical related data. So if you want to do some prediction using medical related data, either you can use machine learning, that is ML, or you can use fuzzy rules. So हम लोगों ने तो implement किया था fuzzy rules using Python at that time, but now I know Prolog, so I know that okay, I can implement those rules using instead of Python, Prolog would have been a better choice. So imagine how many different technologies are there. मोबाइल एप्लीकेशन या फ्रंट एंड, उसके लिए हम लोगों ने यूज किया था HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. देन फॉर मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग इसे भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं. देन फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस वी वर यूजिंग जावा. फॉर दिस फजी एंड ऑल वी वर यूजिंग पाइथन. I can replace this Python by Prolog also, because it is a rule base and we know we can create a rule base using Prolog. So imagine how many different technologies are there. 1, 2, 3. So there is something called as Node.js. So in Node.js, there are some frameworks using which you can convert web application or a website into mobile application. You can actually convert it into mobile app. तो हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी यूज किया था Node.js का, because of which we don't have to develop two things separately. मोबाइल ऐप है, उस वेब ऐप को मोबाइल में कन्वर्ट किया था. अभी सोचो, दिस इज योर सर्वर साइड, ये तुम्हारा, सॉरी दिस इज योर क्लाइंट साइड, यहाँ पे चल रहा है तुम्हारा सर्वर साइड. प्रोलॉग में चल रहा है तुम्हारा रूल बेस. हाउ मेनी टेक्नोलॉजीज आर देयर? 3 टेक्नोलॉजीज. सो दीज आर 3 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आवर सिलेबस. These are 3 different units of our syllabus. Along with that, first unit to basic का है, छोड़ दो. So out of 6, 4 unit we used just to develop one application. 4 unit we used just to develop one application. So that was the thing, and it took me almost 2 weeks to put all these technologies together, that how we can integrate it, how we can integrate all this thing together. And along with that, along with this हम लोगों ने जो विंडोज का क्या रहता है, तुम लोग बैश फाइल बनाते हो ना विंडोज में? बैश, सॉरी पावरशेल नहीं, पावरशेल तो प्रॉम्प्ट हो गया. बैश फाइल्स रहते हैं. बैश फाइल्स आर लाइक समथिंग लाइक यू कैन राइट मेनी विंडोज कमांड्स और कंसोल कमांड्स इन वन फाइल एंड यू कैन रन इट. द मोमेंट यू विल रन इट ना, so all commands are executed one after another. So that is something called as bash file. So bash file was required for a periodic operation. For example, we had a requirement that every day at 6 p.m. every day at 6 p.m. a report should be generated and sent to particular persons. तो हम लोगों ने क्या किया था, उसके लिए PowerShell यूज किया था. एट 6 PM रिपोर्ट जनरेट होगा एंड अनदर पाइथन प्रोग्राम कॉल होगा. वो पाइथन प्रोग्राम मेल सेंड करेगा, so that in that mail report चला जाएगा. So which included a bash also. So ये इतने सारे टेक्नोलॉजी कंबाइन करने के बाद हम लोग का एक एप्लीकेशन बना था. And unfortunately we stood second instead of first, and there was no prize for second. There was no prize for second, but ठीक है, it's okay. हमारे सामने जो टीम थी वो IIT की टीम थी, तो डेफिनेटली हमको इतना बुरा भी नहीं लगा.
But imagine one application which was a requirement of a particular department of government of India, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. एंड हाउ मेनी टेक्नोलॉजीज वर रिक्वायर्ड, कैन यू इमेजिन? 1 2 3 and 4, 4 different things. Then there was a comment from someone, Shubham, you said okay sir, wait for few minutes, my net is working slow, please repeat again what you say. शुभम, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट मिस किया, या कुछ डाउट है तो पूछो. शुभम, आर यू देयर? नहीं. ओके, स्टार्टिंग 5 minutes. ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 minutes में ये था दैट स्टूडेंट्स कभी कभी पूछते हैं दैट हाउ हाई सिलेबस सेटर वाज. दैट्स लाइक कि हाउ मच हाई मीन्स व्हाट, सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो हाई था ही, एंड नाउ यू आर जस्ट आस्किंग हाउ हाई. ऐसा नहीं होता है. इट इज लाइक कि you should ask what was there in mind and why they decided to go with such thing. So it is not कि क्या था. So how I was telling how different technologies are used together to develop one application. So I developed one consultancy application during when I was working in another college. So the application was, they wanted a web application plus mobile application to do some task, and that task was something like कि वो एक फोटो अपलोड करेगा, उसमें से टेक्स्ट निकाल के देना था. वो पर्सन एक फोटो अपलोड करेगा आइदर थ्रू मोबाइल और थ्रू वेबसाइट. वो फोटो जो अपलोड करेगा, दैट पर्सन विल अपलोड अ फोटो. हम लोग को वो फोटो में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है. once the text is extracted, we are supposed to compare that extracted text with a word file और बताना है कि कितना डिफरेंस है, एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंस. अभी देखो कैसे है, उनको मोबाइल चाहिए और मोबाइल ऐप भी चाहिए था, वेबसाइट भी चाहिए था. तो तुमको मैंने बताया कि सिंपल चीज है, यू डेवलप वेब एप्लीकेशन यूजिंग sorry not HTML plus CSS plus JavaScript, and we can convert this web application into mobile app using some Node.js applications. होता है. तुमको टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करना था, तो सर्वर साइड पे टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करना था फ्रॉम इमेज. सो फॉर दैट वी यूज पाइथन, बट अल्टरनेटिव इज जावा आल्सो. कैन बी डन इन पाइथन एज वेल एज जावा, बट आजकल बच्चे लोगों को जावा थोड़ा पुराना लगता है. तो ओके, so we use Python. Then for comparing this thing, you can write code in anything. So you can write code in Java or Python, anything. And finally, you are supposed to identify the difference. And we were supposed to send a mail. We were supposed to send a mail at the end of every day 6 p.m. और 5 p.m. व्हाट्सएवर टाइम जो सेट करेंगे उसके अंदर. अभी ये कैसे था, इट वाज लाइक कि वो प्रोजेक्ट था एक कॉर्पोरेटिव इसका किसका, बैंक्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है ना. तो क्या करते हैं कि वो लोग तुम लोग को मोबाइल पे डॉक्यूमेंट भेजते हैं, क्लाइंट को मोबाइल पे डॉक्यूमेंट भेजते हैं, बोलते साइन करके भेज देना. तो क्लाइंट डॉक्यूमेंट पे प्रिंट आउट निकालता है, साइन करता है और वापस अपलोड करता है. जब वो अपलोड करेगा तो क्या करेगा, फोटो अपलोड करेगा ना, मोबाइल से फोटो खींचेगा या फिर पीडीएफ अपलोड करेगा. अब प्रॉब्लम क्या रहता है, मैंने तुमको भेजा और उसमें एक क्लॉज है. क्लॉज क्या लिखा है कि भाई विल डू होमवर्क एवरी डे, विल डू होमवर्क रेगुलरली, बराबर. तुम लोगों ने साइन करके मुझे रिटर्न करना था. अब तुम लोगों ने ये बीच का सेंटेंस चेंज किया, आई विल नॉट डू. तुम लोगों ने क्या किया, मेरा 5 पेज का डॉक्यूमेंट था, उसमें से सिर्फ एक वर्ड तुम लोगों ने एक्स्ट्रा डाल दिया, नॉट. अब ढूंढते हुए तो अभी ये एक सिंगल वर्ड भी डाल दिया तो पूरा डॉक्यूमेंट का मीनिंग चेंज हो गया ना. सो
ऐसा है क्या कि सामने वाली पर्सन जो है पहले भेजेगा, फिर क्लाइंट साइन करेगा, फिर एक हर एक चीज को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेगा? पॉसिबल है क्या? नहीं, दैट इज नॉट दैट पॉसिबल। व्हाई? अगर उन लोग को रोज 100 डॉक्यूमेंट साइन करके मिल रहे हैं, तो कैन दे रीड ऑल 100 डॉक्यूमेंट्स कि भाई इनको भेजा था, साइन करके भेजा है, तो कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? इट बिकम डिफिकल्ट ना। तो उनका क्या था कि जो साइन करके डॉक्यूमेंट आ रहा है उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करो और कंपेयर करो वो टेक्स्ट विद द वर्ड फाइल जो भेजा गया था। सो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट एंड वर्ड डॉक्यूमेंट जो भेजा था, दोनों अगर मैच किया मतलब कुछ फ्रॉड नहीं है, लेकिन दोनों अगर मैच नहीं कर रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ किया सामने वाले ने। सो दैट वाज आवर टास्क। सो इमेजिन हाउ मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वर देयर। यहाँ पे हम लोगों ने बैच फाइल्स यूज किए थे विंडोज के। फिर इसके लिए पाइथन यूज किया था। कंपेयरिंग के लिए हम लोगों ने लेक्सिकल एनालिसिस यूज किया था, तो हम लोगों ने उसको जावा में कोड लिख दिया था। दैट वाज वेरी इजी, हमको पता था अच्छे से। यहाँ पे पाइथन यूज किया था। तो सो मेनी लैंग्वेजेस। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज selecting a appropriate language for appropriate task. Selecting a appropriate language for appropriate task, that was most important thing. So similarly, तुम लोग को अलग अलग यूनिट्स है, एंड इन डिफरेंट यूनिट्स यू आर कमिंग टू नो दैट ओके प्रोलॉग क्या है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ प्रोलॉग, करता क्या है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, हैस्केल क्या करता है। देन कॉन्करेंसी कंट्रोल तुमको समझ में आएगा। कॉन्करेंसी कंट्रोल तुमको करना नहीं रहता है, ओएस खुद हैंडल कर लेता है, बट यू शुड नो कि ऐसा कुछ चीज होता है। एंड सर्वर्स पे अगर कोर ज़्यादा रहेंगे तो कैसे। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ओएस कॉन्करेंसी कंट्रोल इंप्लीमेंट करता है, हैंडल भी करता है, बट कौन से टाइप का कॉन्करेंसी कंट्रोल चाहिए वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए वो यूनिट है। लास्ट यूनिट इज विथ दैट वेब सर्वर एप्लीकेशंस एंड ऑल, तो वो उसके लिए वो है। तो बाकी यूनिट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन और जावा। तो जिनको बेसिक पाइथन पता है वो बोलेंगे सर पाइथन में क्लास के बिना भी काम चलता है। हाँ भाई, पाइथन में क्लास के बिना भी काम चलता है, लेकिन कभी कंपनी में जाने के बाद पाइथन का कोड विदाउट क्लास लिखो, सेकेंड डे हकल देंगे। हकल देंगे तो तुमको वो आगे कोडिंग करने नहीं देंगे, बोलेंगे तू दूसरा कुछ कर, सपोर्ट कर, मेंटेनेंस कर, टेक्निकल सपोर्ट दे, बट पाइथन कोडिंग मत करना। सो यू आर सपोज टू राइट एवरीथिंग इन क्लास, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। देन nowadays why prolog is there? Nowadays there is hardly any application, in which they don't want some sort of AI, artificial intelligence. So company बोलती है हमको AI चाहिए, but that AI they are expecting with the help of some rule base, that AI they are expecting with the help of some rule base. अभी तुम लोगों ने देखा ही है कि हम लोगों ने प्रोलॉग में लिखा था, तो क्या करते हैं हम लोग को, रोल लिखना सिंपल है कि डिफिकल्ट है? सिंपल है। तो तुम लोग बोलोगे सर वी कैन राइट रूल्स यूजिंग प्रोलॉग, at the same time we can write those rules in Python also. But imagine, in Python writing rules means what? You need to write every rule manually. And in Prolog, with the help of variables, your life is very easy है ना। in Prolog तुम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डाल देते हो और बाद में एक रूल लिख देने का विद हेल्प ऑफ वेरिएबल, एंड दैट रूल कैन बी इजीली इवेलुएटेड। लाइफ बहुत आसान हो जाता है। एंड इवन यू कैन राइट कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, वही उतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स तुम लोग पाइथन में खुद कोड करने जाओगे, लाइफ विल बी हेल। हेल इन द सेंस, एक रूल चेंज करने के लिए भी तुम लोग को बहुत दिमाग खराब करना पड़ेगा, व्हेन यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ रूल्स। बट लेट्स से यू हैव हंड्रेड्स ऑफ रूल्स। इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड में हो गया ना, अगर ये पैरामीटर और ये पैरामीटर मैच किया तो ये पॉसिबल डिसीज हो सकता है, अगर ये पॉसिबल डिसीज हुआ तो ये उसको ड्रग प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ये हो गया। तुम लोग को ये पता है कि इसमें वगैरह सब चल रहा है वहां पे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड अटर्नीज की जरूरत नहीं रहेगी। अटर्नीज लॉयर अटर्नीज, मतलब किसी को अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो उसको अटर्नी की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? देयर आर मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विच डू प्रोवाइड लीगल कंसल्टेशन। सो इमेजिन, और वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग तुम्हारा प्रॉब्लम बताओ, वो रूल्स के साथ मैच करके बताएंगे कि कौन सा लीगल टर्म्स आ सकता है। सो वो बोलते हैं कि वहाँ पे AI है, यस देयर इज AI, बट डोंट यू थिंक दैट AI कैन बी इजीली implemented with the prolog rule base? Yes, you can easily implement with such thing with the prolog rule base, instead of
instead of going with the sentiment analysis or text classification, something like that. ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब यूज नहीं करने का. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, देन एनएलपी, ये सब चीजें की जरूरत नहीं है. प्रोलॉग में रूल बेस बनाओ और अच्छे से हो जाएगा. अभी के टाइम में ऐसा होता है कि उनको कुछ भी हुआ डीप लर्निंग, कुछ भी हुआ मशीन लर्निंग, अरे वो तो गलत लॉजिक है ना. यू शुड नॉट यूज इट. बट द प्रॉब्लम इज लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है करके. क्लास, आर यू विथ मी? Yes? Okay, good. Yes. Okay, so let me tell you one thing. कि हाँ क्या था? Okay, so let me tell you one simple thing. कि मशीन लर्निंग या पर्टिकुलरली एआई के नाम पे 50 लाख का कंसल्टेंसी दिया था. 50 नहीं, सॉरी 25 lakhs. दिस वाज फॉर 25 lakhs, सॉरी. एआई के नाम पे 25 lakhs का कंसल्टेंसी मिला था एक कंपनी को. मतलब आई वाज अटेंडिंग वन सेमिनार और वहाँ पे वो कंपनी का सीईओ हमको केस स्टडीज बता रहा था कि फॉर मशीन लर्निंग और एआई. तो एक कंपनी का उसको फोन आया था. ओके, दिस केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, एंड सो दैट यू कैन लर्न समथिंग, एंड एट दैट मुझे बताना कि तुम लोगों ने सीखा क्या. ओके, एक कंपनी है, वो कंपनी की क्या करती है, वो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचती है. सो दैट कंपनी, लेट्स से क्या हो गया, कैंसल. वो कंपनी 20 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचती है. प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, अप टू प्रोडक्ट नंबर 20. द प्रोडक्ट्स आर टेक्निकल प्रोडक्ट्स, मीन्स वो अलग अलग इक्विपमेंट्स है. अभी अगर कोई कंपनी इतने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बेचती है तो क्या रहेगा, अगर कोई कस्टमर है, उसको कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ डाउट आया, तो वो क्या करेगा, वो कस्टमर केयर पे कॉल करेगा. अब कस्टमर केयर जो है, तो कस्टमर केयर जो है वो 24/7 चालू होना चाहिए एज पर आवर रिक्वायरमेंट. इंडिया का ऐसे रिक्वायरमेंट है, कोई 12 बजे उठ के देखेगा, अरे आप मेरे को अभी चेक करना है, क्यों नींद नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है. अभी तो इन लोगों ने कैसा था कि एक पर्सन को 24/7 कंपनी को कस्टमर केयर खुद का चालू करना पॉसिबल नहीं रहता हर एक कंपनी को. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक नंबर लेते हैं, कोई तो भी जनरल ऐसा 1800 ऐसा कुछ नंबर होता है ना, और वो एक नंबर किसी कंपनी को असाइन करते हैं. तो वो बेसिकली रहते बीपीओ, आइदर दे आर बीपीओ और कॉल सेंटर, समथिंग लाइक दैट. तो उनका काम क्या रहता है, उनका काम रहता है कि ये एक नंबर पे का कॉल आया तो इस इनके पास वो प्रोडक्ट का लिस्ट रहता है, ये प्रोडक्ट 1 अप टू प्रोडक्ट 20 है, और इसमें अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आया तो क्या आंसर देने का सब उनका पूरा लिस्ट रहता है. अभी बीपीओ का बेनिफिट क्या रहता है, वो लोग इस कंपनी को पर कॉल नहीं पर मिनट चार्ज करते हैं. और वो पर मिनट 1 रुपीज 2 रुपीज चार्ज नहीं करते, पर मिनट अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं, क्योंकि इनका सैलरी भी प्ले कर रहे हैं वो लोग ना. सो तुम लोगों ने कभी ऐसा देखा है क्या कि कभी कभी तुम लोग कस्टमर केयर को फोन करते हो एंड दिस पीपल आर लाइक कि दे कीप ऑन टॉकिंग. मतलब तुम लोग उसको बोलोगे कि ओके थैंक यू, नो मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो बोलेंगे जस्ट अ मिनट लेट मी समराइज. वो 1 मिनट समराइज करते हैं. तो वाई दे आर समराइजिंग, बेसिकली उनका बिलिंग बढ़ा रहे हैं वो लोग, बेसिकली उनका बिलिंग बढ़ा रहे हैं एंड सो ऑन. तो इट इज लाइक, समझो तुम्हारे अगर कोई कैब है, तुम लोग कैब के अंदर बैठने के बाद ड्राइवर का मीटर शुरू होता है. इट इज नाउ योर मीटर इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ किलोमीटर, इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेकंड्स. तो तुम लोग गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर बोल रहा है, ड्राइवर ने मीटर ऑन किया और बोला ओके माय नेम इज असलम, आई एम योर ड्राइवर फॉर टुडे, और तुमको 20 मिनट इंट्रोडक्शन दे रहा है कि तुमको क्या फैसिलिटीज मिल सकते हैं, सॉरी 20 सेकंड तुमको इंट्रोडक्शन दे, तुमको क्या फैसिलिटीज मिल सकते हैं वगैरह वो सब. देन ही इज टेलिंग यू, जब तुम लोग उतर रहे हो तो तुमको बता रहा है, तुमसे बात कर रहा है कि ओके थैंक्स फॉर कमिंग, और 10 सेकंड लिए, और फिर उसने मीटर बंद किया. तो क्या हुआ, तुम लोग 30 सेकंड ड्राइव नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमको 30 सेकंड का बिल लगाना वैसे यहाँ पर रहता. तो ये कंपनी का जो बिल है, वो पर मंथ उनका बिल आ रहा था अराउंड 2 to 3 lakhs. तो उनका पर मंथ अराउंड 2 to 3 lakhs का बिल आ रहा था इनिशियली. लेकिन जब उनका इंडिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह सबका प्राइस जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया वगैरह, सो दे आर लाइक कि चलो प्रॉफिट तो बढ़ गया है लेकिन बिल भी बहुत बढ़ रहा है, कुछ कर सकते हैं क्या.
So they called a company. They called a company which do provide AI based solution. उनको बोला कि हमारा जो बिल है अगर 6 to 7 लाख से घट के अगर 2 लाख के अंदर आ जाएगा तो दे आर लाइक कि ओके चलो 1 साल के अंदर पैसा वसूल हो रहा है एंड प्रॉफिट में रह रहे हैं और ऑनलाइन मार्केट तो बढ़ रहा है. सो कंपनी ने सोल्यूशन दिया और उनका कॉस्ट बढ़ गया. तो कब बच गया एक्चुअली वो लोग 1.5 to 1.8 lakhs पर मंथ उनका चार्जेस आने लग गया बीपीओ से. पता है उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने कुछ नहीं किया ज़्यादा. उन लोगों ने क्या किया कि कौन से एरिया में अगर प्रोडक्ट गया तो वहां से क्वेरी ज़्यादा आ रहे हैं तो वो लोग उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन निकाली और बाद में क्या किया उन लोगों ने ऐसे एक डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया. तो उस एरिया में अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो उसको एक मेल जाएगा. उस मेल के अंदर पूरा एक पीडीएफ रहेगा जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी. सेकेंड वो उसको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे जिसके अंदर ये पीडीएफ वापस रहता था अलॉन्ग विद सब इन्फॉर्मेशन. थर्ड वो यही सेम इन्फॉर्मेशन कंपनी को भेजते थे और बोलते थे वो कंपनी में जो पर्सन बैठा रहता था वो पर्सन सिर्फ उसको कॉल कर इतना होता था कि आपको एक मेल आया है आपको एक व्हाट्सएप आया है उसमें पीडीएफ है अगर आपको उसमें से कुछ अगर इन्फॉर्मेशन समझा नहीं तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता था. अब लेकिन अभी जो पर्सन जो कॉल जाता था वो बीपीओ से नहीं जाता था कॉल. वो कॉल जाता था कंपनी से. कंपनी में 2 लोग बैठ के ये कॉल करते थे. अभी कंपनी में जो 2 लोग बैठ के कॉल करते थे उनका पर मंथ सैलरी कितना रहता था 15,000 to 20,000. सो इतना प्रॉब्लम नहीं था तो उन्होंने ये सब इंप्लीमेंट किया था पाइथन में. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड वाज 50 लाइन्स. And what was the amount they charged? 25 lakhs. It was simply a data visualization problem. उसको सॉल्व करके खत्म कर दिया था उन लोगों ने. अभी मुझे बताओ ऐसे ही जब बाद में उनको एआई बेस्ड चाहिए था कि कौन सा इसमें आएगा वगैरह तो उन लोगों ने सिंपली पाइथन में फजी रूल्स लिख दिए. पाइथन में उन लोगों ने फजी रूल्स लिख दिए खत्म. और उसको उन्होंने बोल दिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दे कॉल इट अ रूल बेस्ड एआई. और उसके लिए उन लोगों ने 5 लाख अलग से चार्ज किया था बाद में. अभी तुम लोग सोचो अगर कोई पर्सन है जो खुद का स्टार्टअप चला रहा है या बाकी कुछ चला रहा है उसको पता है कि रूल बेस्ड बनाना है तो प्रोलॉग अच्छा है टेंशन नहीं है रूल बेस्ड सर्वर साइड पे ही चाहिए तो आराम से काम कर सकते हैं हम लोग. हाउ इजी इट विल बी. और बाकी भी सारे चीजें तुम लोग फजी में कितना आसानी से कर सकते हो. सो द थिंग इज दैट उसको पता था कि उसको करना क्या है लेकिन जो पर्सन कंपनी में बैठा था उसको कुछ पता नहीं था उसने उतना अमाउंट दे दिया. सिमिलरली उन लोगों ने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 अलग अलग कंपनी को पिच किया था बट उनको ये पता नहीं था कि ये फजी रूल ये एआई रूल बेस्ड ये बनाने का कैसे रहता है. तो डेफिनेटली उन लोगों ने फिर बड़े लोगों ने बड़ा चार्ज किया जब उनको पता नहीं रहता कैसे बनाने का तो वो क्या करते हैं चार्ज हाई व्हाई इट्स कॉम्प्लिकेटेड थिंग. बट ये बंदे का कंपनी इतना बड़ा नहीं था बट ही न्यू व्हाट टू डू तो हो गया. तो काम हो गया. तो सिमिलरली अगर आज के डेट में जब मैंने प्रोलॉग वगैरह भी मुझे पता है तो मैं समझ सकता हूँ ये 5 lakhs मतलब मेरे लिए कुछ नहीं था. इट वॉज अ मैटर ऑफ ओनली 3 days एंड सो ऑन. तो सिमिलरली बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हमको पता नहीं रहता है दैट विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड एंड हाउ थिंग्स शुड बी प्लेस्ड हाउ थिंग्स शुड बी प्लेस्ड. तो प्रॉब्लम होता है. तो सिंपल एग्जांपल तुमको मैं बोलता हूँ अगर तुम लोग को मैंने बताया कि एक काम करो आई वांट मोबाइल एप्लीकेशन आई वांट लेट्स से वेब एप्लीकेशन आई वांट अ वेबसाइट जहां पर मुझे क्या करना है मुझे कुछ कंप्यूटर विजन करना है एंड आई वांट डेली रिपोर्टिंग ऑल्सो. तो कंपनी वाले क्या सोचेंगे अरे कंप्यूटर विजन करना है वेब एप्लीकेशन पे करना है मतलब क्या वेबसाइट सर्वर पे तो जावा लगेगा लेट्स यूज जावा. तो सर्वर साइड पे जावा पे वेब एप्लीकेशन बनाना चालू कर देंगे. तो वो लोग जावा यूज करना है तो लोग सीधा पूरा का पूरा एप्लीकेशन जावा में बनाएंगे और ये चीज बहुत ट्रिकी भी हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा बिकॉज जावा इज नॉट मेंट फॉर कंप्यूटर विजन.
languages which are meant for computer vision are different. लेकिन अगर तुमको पता है कि I can use Python for this thing, I can use some scripting for this thing, and this thing I can develop using Node or web application, web technologies. This thing will become very efficient. This thing will become very efficient, and at the same time, costing of development will be reduced. Cost of development will be reduced like anything. Because you know which are these technologies and how to work on it. तो पहले क्या होता था, पहले पूरा का पूरा एप्लीकेशन जावा में लिखते थे, स्टार्ट टू एंड पूरा जावा में रहता था, तो तभी JSP वगैरह सारी चीज़ें चलती थी. लेकिन आज के डेट में तुम लोग को कोई JSP में जॉब ओपनिंग मिलता है क्या? नहीं. लोग फ्रंट एंड किससे बनाते हैं? आइदर दे डेवलप्ड इट यूजिंग सम अदर एप्लीकेशन. आज के डेट में नोड तो बहुत चल रहा है उस सब के लिए. दे यूज नोड और some part they will develop using PHP, something like that, and then from PHP they will call either Java or Python or something like that, and in backend they have something else. So ये placement है, that is very much important. और तुमको पता है ये सब placement क्यों चालू किया लोगों ने? Because the development cost is reduced. Because what? The development cost is reduced. How development cost is reduced? PHP का सर्वर सस्ता रहता है. अगर तुम लोग PHP का होस्टिंग लोगे सस्ता रहेगा, जावा का होस्टिंग महंगा आता है, पाइथन का होस्टिंग भी महंगा है. अगर मुझे कंप्यूटर विजन बेस बनाना है, तुम लोग बोलोगे ठीक है कंप्यूटर विजन बेस बनाना है, मतलब ठीक है, मतलब मुझे या तो जावा चाहिए तो पाइथन चाहिए, तो मुझे पाइथन का सर्वर चाहिए. द मोमेंट यू से यू नीड अ पाइथन सर्वर और यू नीड जावा सर्वर, कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है. उससे पे मैंने क्या करूंगा, PHP लिखूंगा. PHP का सर्वर सिंपल है. पाइथन या जावा के लिए मैं डॉकर यूज कर लूंगा, जो बहुत लो कॉस्ट होते हैं. यहाँ पे स्क्रिप्टिंग है, मेरा काम हो गया. कॉस्टिंग 20% तक नीचे आएगा. मतलब जहाँ पे तुम लोग को पहले 100 रुपीज लगने वाला था, अभी 20 रुपीज लगेंगे. इमेजिन द डिफरेंस. दैट्स वाई you should know many technologies as far as possible, otherwise काम नहीं चलता है. अदरवाइज क्या होगा, तुम लोग वही सब कि ये 5 टेक्नोलॉजीज लगाना है, इतना इतना करना है, खत्म हो जाएगा बात. तो सॉरी, तुम लोग क्या बोलोगे, जावा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जावा यूज करेंगे हम लोग, नहीं तो ये पूरा एक ही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. तो ये वर्ल्ड चेंज हो गया बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्टिंग. क्यों? PHP प्रोग्रामर का सैलरी कम रहता है, whereas JSP प्रोग्रामर तुमको जल्दी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो सैलरी ज़्यादा रहेगा. वाई? बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन जावा ऑल्सो. वो गड़बड़ हो जाता है. फिर JSP होस्टिंग करने का तो होस्टिंग का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है, होस्टिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गया. PHP का डेवलपर का सैलरी भी कम है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट कम है, होस्टिंग कॉस्ट सबसे कम है PHP का, बिकॉज इट्स फ्री एंड समथिंग एल्स, थिंग्स लाइक दैट. तो वैसे ही बाकी सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ने लग गया. सिमिलरली अगर तुम लोग को पहले क्या होता था, अगर या तो JSP बनाओ नहीं तो पूरा का पूरा ASP पे बनाओ. अब ASP बने मतलब क्या, पूरा का पूरा डेवलपमेंट विंडोज पे आ गया, तो डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ गया. तो भी वो लोग क्या बोलते हैं, ASP नहीं बनाएंगे हम लोग. अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर चाहिए तो सिर्फ सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का रखो, बाकी सारे टेक्नोलॉजीज हम लोग PHP नोड बाकी सारे ले लेंगे. आर यू गेटिंग इट गाइस? सो ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो पूरा का पूरा नीचे आ रहा है, बिकॉज instead of using one technology from start to end, you are using n number of different technologies. Are you getting it guys? Yes, sir. या फिर मैंने चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया? ओके, गॉट इट, गुड. व्हाट अबाउट यू राहुल, समझा क्या? Why so many technologies in our syllabus? Rahul, are you there? Rahul is there. Good. Next. So similarly,
you tell me one application and I'll tell you which different technologies can be used for that application. So how you can integrate different technologies for that application, I can tell you that. फ्लिपकार्ट शेयर इट, सीरियसली तुम लोग को फ्लिपकार्ट और शेयर इट चाहिए? संदीप, शेयर इट दो मोबाइल के बीच में होता है ना, इतने सारे टेक्नोलॉजीज क्यों लगाएगा? ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर हो जाता है, इट्स सिंपल ऐप टू ऐप, उसमें कुछ खास है नहीं, मतलब इट इज नॉट फॉर शेयर इट, यू डोंट रिक्वायर ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स. अमन क्या लिखा है? सर द न्यू गूगल हम टू सर्च, व्हाट डू मीन बाय दिस? मेरे को समझा नहीं अमन, व्हाट यू वांट टू से. सर उसको लगता है नया गूगल बनाना है. ओ तेरी, नहीं सर, वो अमन गूगल ने लाया ना हम टू सर्च. अगर कोई मेलोडी जो आपके माइंड में वो गाने से आता है. ओके 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 ओके, गॉट इट. सिर्फ तुम लोग गुनगुनाओ, समझा समझा समझा. हाँ सर वैसा. हाँ गुड. नहीं, हम लोग हम टू सर्च पे डिस्कस करेंगे. अनुराग, गेम डेवलपमेंट में सी प्लस प्लस डोमिनेट कर रहा है, ऐसा एक टाइम था, बट अभी गेम डेवलपमेंट के लिए वो लोग सी शार्प और जावा यूज करते हैं ऑन यूनिटी प्लेटफॉर्म. कुछ दो तीन नाम है, नोट कर लेना. यूनिटी इज अ प्लेटफॉर्म जो लोग यूज करते हैं बहुत बार मोबाइल गेम डेवलपमेंट के लिए वगैरह. And in that platform, either you can code it in C sharp or you can code it in Java, something like that. I Python का ऑप्शन है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट ये डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेजेस यूज करते हैं. तो इट्स लाइक यू राइट अ कोड फॉर वन प्लेटफॉर्म एंड इट कैन बी यूज्ड इन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो हम लोग जाते हैं. यस, लुआ वगैरह भी यूज होता है, बट उसका शेयर, मार्केट शेयर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना मार्केट शेयर सी शार्प, जावा, इन सब लैंग्वेजेस का है. लुआ भी है, नहीं ऐसा नहीं है. लुआ लैंग्वेज गेम डेवलपमेंट के लिए से नहीं है. और लुआ में मशीन लर्निंग भी होता है, डीप लर्निंग भी होता है, सब कुछ होता है. एक मिनट, अभी हम लोग थोड़ा डिस्कशन में भटक रहे इधर इधर. लेट अस सर्च टू दैट, हम सर्च ऑन गूगल प्लेटफॉर्म. ओके, सो लेट अस फोकस ऑन दैट कि कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट से तुम लोग सुबह सुबह कुछ तो अचानक से पुराना गाना याद आ गया. किसने क्वेरी लिखा था ये हम सर्च? अमन सर, अमन. अमन. ओके अमन, गुड, थैंक यू. लेट से अमन है, सुबह सुबह मस्त ऐसा उठ गया, 10 o'clock का लेक्चर है, बहुत जल्दी उठ गया 9:50 को, 10 मिनट है, चलो अभी बैठा है लेक्चर के लिए. एंड सडनली उसको याद आया, अरे कुछ तो नया गाना है, कुछ तो पुराना गाना उसके दिमाग में आ रहा है, वो गुनगुना रहा है. तो बट उसको याद नहीं आ रहा कि गाना क्या गुनगुना है, उसको कुछ धुन याद है, तो वो कुछ गुनगुना रहा है. तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले क्या रहेगा, अगर उसका मोबाइल है या वेब है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ सब मोबाइल है, तो यहाँ पे वो कुछ कुछ बोल रहा है. मम्मी पीछे से पूछ रही है, अमन क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों रो रहा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, बट अमन इज लाइक कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ब्रदर इज हैविंग अ डिफरेंट थॉट, क्या हो गया करके. बट ठीक है, इट्स ओके. तो वो बटन प्रेस करेगा, वो बटन के बाद वो कुछ गुनगुनाना चालू करेगा, फिर बटन स्टॉप करेगा. एक ऑडियो फाइल रहेगा, वो ऑडियो फाइल रिकॉर्डिंग जो होगा वो अपलोड होगा क्लाउड पे. सो क्लाउड इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड. सो इट इज अदर क्लाउड और समथिंग, लेट से सर्वर पे गया, इट कैन बी क्लाउड और इट कैन बी गूगल सर्वर, समथिंग लाइक दैट. तो गूगल के खुद के सर्वर्स रहते हैं, वो क्लाउड बेस्ड नहीं रहते, क्लाउड सर्विस दे प्रोवाइड, बट गूगल का खुद का सर्वर क्लस्टर सर्वर रहता है, इसको सर्वर क्लस्टर बोलते हैं हम लोग, सर्वर
क्लस्टर। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, वो प्रोसेसिंग क्या होता है मैं पहले बताता हूँ, जस्ट मिनट, गिव मी 2 मिनट्स। ये प्रोसेसिंग होगा, ये प्रोसेसिंग होने के बाद दे विल आइडेंटिफाई सम फीचर्स, दे विल आइडेंटिफाई सम फीचर्स एंड बेस्ड ऑन दैट फीचर्स वो बताएंगे कि तुम लोग कौन सा गाना गुनगुना रहे थे। दे कैन टेल यू तुम लोग कौन सा गाना गुनगुना रहे थे। अभी क्या होता है, वन कैन राइट पाइथन प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स लाइक MFCC फ्रॉम ऑडियो फाइल। अभी ये जो MFCC फीचर दे वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडियो फाइल, इसको बोलते हैं मेल स्पेक्ट्रल कोएफिशिएंट होता है, मेल स्पेक्ट्रल, हाँ, मेल स्पेक्ट्रल कोएफिशिएंट रहते हैं, तो फीचर निकालेंगे। एंड जो तुम्हारी ऑडियो फाइल का जो MFCC फीचर है वो उनके डेटाबेस में जितने भी सपोज लेट्स से उनके डेटाबेस में 1 मिलियन सॉन्ग्स है, ठीक है, तो 1 मिलियन सॉन्ग्स का हर एक सॉन्ग का उन लोगों ने MFCC फीचर निकाला रहेगा, हर एक सॉन्ग का उन लोगों ने MFCC फीचर निकाला रहेगा। अभी तुम्हारा जो गुनगुना रहे थे उसका MFCC फीचर वो 1 मिलियन MFCC फीचर के साथ कंपेयर करेंगे, और जो नियरेस्ट मैच लेंगे वो तुमको लिस्ट करके दिखाएंगे कि ये 10 गाने तुम में से कुछ तुम लोग बोल रहे थे क्या। अभी जब तुम लोग गुनगुनाते हो तो तुम लोग म्यूजिक गुनगुनाते हो या वर्ड्स गुनगुनाते हो, ऐसा तरह तो तुम लोग म्यूजिक नहीं, वो तुम ऑडियो गुनगुना रहे हो, बराबर। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, अगर उनके पास 1 मिलियन फाइल्स रहेंगे ना, तो वो फाइल में से वो वॉइस और म्यूजिक दोनों को अलग अलग करेंगे। एंड बिलीव मी यू कैन डू इट, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 मिलियन सॉन्ग्स में से वो वॉइस और म्यूजिक अलग अलग करेंगे, और फिर सिर्फ वॉइस जो सैंपल रहते हैं वॉइस का एमसीसी निकालेंगे फीचर्स, सिर्फ वॉइस का एमसीसी फीचर निकालेंगे, जो तुम लोग गुनगुना रहे हो उसका एमसीसी फीचर रहेगा, और बाद में तुम लोग कंपेयर करके बताओगे। तो ये उसका प्रोसेस है कि मोबाइल से जो भी ऑडियो आएगा वो सर्वर पे जाएगा, तुम लोग उसको गुनगुनाया हुआ जो भी ऑडियो रहेगा उसका एमसीसी फीचर निकालो, जो 1 मिलियन सॉन्ग्स है उसके एमसीसी फीचर के साथ उसको मैच करो। अभी जब तुम लोग सॉन्ग्स में से तुम लोग को मैंने पहले एक क्लियर बोला कि सॉन्ग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, म्यूजिक पार्ट एंड वॉइस पार्ट, और वो सिर्फ वॉइस पार्ट पे ही काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बोल कोई अगर गाना था मेरा जूता है जापानी, तो तुम लोग कैसे कहोगे तो जो भी कुछ है दोनों का पिच ट्यून वगैरह सब मैच करेगा ना, तो फीचर्स मैच करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनाने का रहेगा तो आइदर दे विल यूज मोबाइल टेक्नोलॉजीज और वेब टेक्नोलॉजीज, बट ये जो दे कैन डेफिनेटली यूज मोबाइल टेक्नोलॉजीज। अभी ये सब गूगल वगैरह ये सब लोगों ने क्या चालू किया है, दे आर ट्राइंग टू यूज न्यू टेक्नोलॉजीज एज पॉसिबल, तो आइदर वो रिएक्ट यूज करेंगे, लेकिन रिएक्ट फेसबुक का है तो गूगल वाले यूज नहीं करेंगे, उनके लिए वो अछूत है, हम लोग नहीं करेंगे, और इंटरकास्ट मैच होता नहीं है, रिएक्ट नहीं यूज करेंगे, वो उनका टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, उनके भी खुद का टेक्नोलॉजीज वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजीज रहेगा। अभी यहाँ पे सर्वर रहेगा, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सर्वर्स रहेंगे, एंड व्हेन यू हैव क्लस्टर ऑफ सर्वर्स तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉन्करेंसी तो रहेगा ही रहेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पाइथन कोड रहेगा, एंड फॉर दैट जावा कोड इज ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव, क्योंकि मैंने जावा में भी इसका कोडिंग किया, आई नो। फॉर इट इज इजी टू extract MFCC features from it, and once it is extracted you can compare those features, and for comparing again concurrency is required, multi-threading होता ही होता है, otherwise comparing 1 with 1 million इतना आसान नहीं है। So again we can consider यहाँ पे concurrency या कुछ ना कुछ तो रहेगा, and finally at the end finally तुम्हारे पास कुछ फजी रूल बेस रहेगा। तुम लोग उसमें चेक करोगे कि ये बंदा जब बोल रहा था तो उसका सैड ट्यून था कि हैप्पी ट्यून था, एंड तुम लोग तुम्हारी वॉइस से पता चलता है सैड है कि हैप्पी है। तुम लोग सैड गाना गुनगुनाते हुए भी तुम लोग हैप्पी हो सकते हो, बराबर ना। वो अलग बात है कि तुम लोग गाना बोलने के बाद तुम लोग सैड होते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, अभी कौन सा है, कौन सा सिंगर है अभी वो सब रोते हुए गाने गाता रहता है, यस क्लास, सलमान खान के साथ उसका पंगा हो गया था बीच में।
हेलो क्लास, सिंगर का नाम कैसे बोल सकता हूँ मैं? यस, अरिजीत सिंह, परफेक्ट। तो बराबर है। अभी तुम लोग अरिजीत सिंह के गाने गा रहे हो तो तुम लोग गाने गाने से पहले दुखी नहीं होते, सुनने के बाद होते हो। इट्स लाइक कि 2 ब्रेकअप हो गए तुम्हारे ऑलरेडी। अगर तुम लोग आधा घंटा अरिजीत सिंह को सुनोगे, बाद में 2 घंटा खुश नहीं रह सकते। ओके, फॉरगेट अबाउट इट, ही इज अ गुड पर्सन, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट इट, नाइस पर्सन। तो इट्स लाइक कि 2 घंटे तुम लोग सोच रहे थे ये तुमको तुम्हारे स्कूल से लेके अभी तक के सारे क्रश आ जाएंगे, एंड यू विल नॉट बी हैप्पी फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, बट गाने से पहले तुम लोग हैप्पी थे, तो गुनगुनाने से पहले, एंड समथिंग लाइक दैट। सो वहां पे फजी रूल बेस रहेगा, तो ये गूगल ये सारी चीजें अप्लाई करेगा, एंड डेफिनेटली आई थिंक कि इससे भी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड करता रहेगा वो। तो जब ये सब चीजें हो रही है, तो इमेजिन आई कैन इम्प्लीमेंट दिस रूल बेस कि मैं अगर हैप्पी मूड में रहूंगा तो ये गाना गा रहा हूँ, चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनको सर्च को और नैरो डाउन करना है। सो नाउ वी नो Prolog, we can use Prolog over here. Here we can use Java or some object oriented platform. Java is better as compared to Python as far as I am concerned over here. Then यहाँ के लिए तो हम लोग कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन अ सीक्वेंस. एंड यस, यू कैन टेक इट एज अ पायलट प्रोजेक्ट. तुम लोग को अगर ट्राई करना है तो तुम लोग ऐसा यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो तुम लोग को मैंने क्लास में बताया था क्या कभी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैंने टाइम पास में एक एप्लीकेशन बनाया था स्टार्टिंग के 2 वीक में, कि मैं जो कोड बोल रहा हूँ वो पाइथन में कन्वर्ट होके, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको पाइथन कोड में कन्वर्ट होके वो वेब पेज पे डिस्प्ले होता था. एंड द मोमेंट आई से रन, वो कोड रन होकर आउटपुट डिस्प्ले होता था. तुमको मैंने बताया था कि ऐसा कुछ? ओके, नहीं बताया था. यहाँ पर मैंने क्या यूज किया था, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में यूज किया था नोड जेएस, नहीं यूज किया था, मैंने यूज किया था जावास्क्रिप्ट और HTML फॉर डेवलपिंग माय फ्रंट एंड. वॉइस टू टेक्स्ट वगैरह सब जावास्क्रिप्ट में हैंडल होते हैं आज के डेट में विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर. देन सर्वर साइड पे मैंने यूज किया था पाइथन फॉर डूइंग सम टास्क. एंड फाइनली वो कोड को रन करने के लिए मैंने बैश स्क्रिप्टिंग यूज किया था, मैंने शेल स्क्रिप्टिंग यूज किया था. तो शेल स्क्रिप्ट से कोड रन होता था, उसका आउटपुट सर्वर पे आता था और यहाँ से उसका आउटपुट इधर आता था. इट वाज लाइक कि मैंने अगर कुछ बोला तो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट होता था और सर्वर साइड पे ही रहता था, वो इधर ब्राउजर पे ही रहता था. द मोमेंट आई से रन, वो कोड जाता था पाइथन को, यहाँ पे वो कोड का एक .py फाइल कन्वर्ट करता था, और .py फाइल को रन करने के लिए शेल स्क्रिप्टिंग कॉल होता था. शेल स्क्रिप्टिंग रन करता था, उसका आउटपुट वो पाइथन को देता था और वहां से उसका आउटपुट आता था सर्वर को, मतलब ये मेरे ब्राउजर को. सो इट वॉज दिस थिंग. सो शेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन, यू कैन रिप्लेस पाइथन बाय जावा ऑल्सो, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड देन यहाँ पे दिस थिंग. तो ये कैसे कोड बनाया था मैंने, और गूगल ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है शुभम, गूगल ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है. इवन फायरफॉक्स से बाकी भी सारे ब्राउजर्स कर सकते हैं, नो नीड ऑफ गूगल ट्रांसलेटर. और बाकी ट्रांसलेटर भी अच्छा खासा काम करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड द ट्रांसलेटर दैट वर लाइक कि दे वर अलाउइंग मी टू यूज इंडियन हिंदी, इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो. और उस दिन मुझे पता चला था कि आई कैन टॉक इन हिंदी एंड आई कैन गेट द आउटपुट एज ए हिंदी टेक्स्ट. ये मेरे को उस दिन पता चला था. टिल दैट टाइम मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है करके. और ये दोनों ये फैसिलिटीज फायरफॉक्स और क्रोम में अवेलेबल है. आई डोंट नो अबाउट सफारी, मैंने ट्राई नहीं किया, हो भी सकता है. मैक यूजर्स प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस, मैंने ट्राई भी नहीं किया, पता भी नहीं मुझे. बट हाँ, अगर फायरफॉक्स और क्रोम में है तो सफारी में भी हो सकता है. ब्राउजर सपोर्टेड रहता है, गूगल ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है. सर सर इन हम सर आई एम राहुल. सर इन हम हाँ ये राहुल बोलो ना. मेलोडी सॉन्ग मीन्स हम लोग गुनगुनाते हैं ना, वो we can convert into decimals and add it into list, and then the list is sorting at server side, then it's become more easier. हाँ सी, देख कैसा रहता है ना कि So we गूगल
Okay, jump into the 1 mil. If there is 1 million song, and if we know the first value, then we can directly jump into the 700 or a 7,000 or 7 lakh song. नहीं, वो जो तू बोल रहा है वो रूल बेस है, मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं इसको वो रूल बेस में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे मैच कर रहा है, एंड देन दे कैन इम्प्लीमेंट इट, Okay. और दे कैन इम्प्लीमेंट विद हैशिंग आल्सो, बट कर सकते हैं। तूने ये ऐसा पढ़ा था, उन लोगों ने कहीं पे बोला है, या और यू आर सेइंग इट? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ, आपने बोला था ना कि ऑल 1 million सॉन्ग वो सर्च करेगा, तो नहीं, कैसे रहता है ना, बिकॉज सॉन्ग सर्च करना है जो, सम सॉन्ग्स कुछ कुछ लोग बीच में से आते हैं, तो वो हो सकता है फर्स्ट। नहीं, सी राहुल, तू जो बोल रहा है ना कि बीच में से आ सकते हो वगैरह, वो सब बराबर है। अभी तूने ये पॉइंट निकाला है तो मैं तुमको बताता हूँ कि हम लोग बीच में से भी गुनगुना सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, एक सॉन्ग रहता है ना, एक सॉन्ग का एक एमएफसीसी फीचर नहीं रहता। इट इज नॉट लाइक कि वन सॉन्ग हैज वन एमएफसीसी फीचर, ऐसा नहीं रहता है। वो एक सॉन्ग को डिपेंडिंग ऑन लेंथ 500 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड एवरी पार्ट हैज वन एमएफसीसी फीचर। सो अगर तुम्हारे पास एक सॉन्ग है तो रिलेटेड टू वन सॉन्ग you we will have 500 MFCC features. Because of this it doesn't matter कि तू कौन सा बोल रहा है, बीच का बोल रहा है, एट द एंड का बोल रहा है, किधर का बोल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। So that is how it works. मतलब एक पूरे सॉन्ग का एक MFCC फीचर नहीं निकलता है, उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और बाद में उसके फीचर्स वगैरह सब निकलते हैं। ओके राहुल? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट था। इट वाज लाइक कंटेंट बेस्ड ऑडियो रिट्रीवल, वीडियो रिट्रीवल एंड इमेज रिट्रीवल। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास सॉन्ग्स का डेटाबेस है फॉर ऑडियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर टू पार्ट्स, इमेज एंड वीडियो, तो मुझे क्या है, मुझे एक छोटा सा क्लिप मिलेगा और मेरा पूरा का पूरा सॉन्ग इतना बड़ा है, तो ये क्लिप मेरा स्टार्टिंग में हो सकता है, बीच में, एंडिंग में हो सकता है। ये क्लिप जिस सॉन्ग्स का रहेगा वो सॉन्ग मुझे निकाल के चाहिए डेटाबेस में से। ये मेरा प्रोजेक्ट का एक टाइटल, एक पार्ट था। तो ये ऐसा क्यों किया था, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू चेक कि ध्यान दो क्यों किया, तो वो अलग बात है। तो तभी हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था एट द टाइम। मैं रेड रिसर्च पेपर्स, उन लोगों ने भी सब ऐसा ही किया था। तो एक सॉन्ग का बहुत बड़ा डेटाबेस हो जाता है, बट इट्स ओके, अच्छा, इट्स गुड थिंग टू डू, यू कैन अंडरटेक सच थिंग्स। इवन ये अपना आयरन मैन वाला जारविस है ना, तुम लोग ये आयरन मैन वाला जारविस बनाने के लिए अगर तुम लोग को सिर्फ पाइथन ना, तुम लोग को सिर्फ पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML इतना भी आता रहेगा ना, तो भी तुम लोग वो जारविस खुद के लिए बना सकते हो। तुम लोग को घर में एलेक्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक कि तुम लोग अपना खुद का एलेक्सा बना सकते हो, और वो ऑफलाइन काम करेगा, नहीं ऑफलाइन नहीं काम करेगा, ऑनलाइन काम करेगा। सॉरी, ऑफलाइन नहीं काम करता, वो ब्राउजर है, ब्राउजर खुद कर रहा है। सो यू कैन डेवलप ऑल सच थिंग्स। मतलब एलेक्सा के जगह पे तुम लोग अपना खुद का सिस्टम बनाया है और तुम लोग बोल रहे हो शुभम गर्लफ्रेंड है तेरी कोई? नहीं है? शुभम क्लूलेस ना हो। ठीक है, कोई बात। लेट से तेरा भाई है, तेरा शुभम का कोई भाई है, उसका भी बात सुनता नहीं है, तो उस प्रोग्राम को शुभम का भाई का नाम क्या है, कोई तो नाम दे, लेट से अजय नाम है। वो बोलेगा अजय लाइट ऑन कर, ऑन हो जाएगा। वो बोलेगा अजय लाइट ऑफ कर, लाइट ऑफ हो जाएगा। बोलेगा अजय प्ले सम सॉन्ग्स, सॉन्ग्स प्ले हो जाएंगे। सो ये सब तुम लोग खुद बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, आसानी से। तुम लोग बोलोगे सर उसके लिए उतना टाइम पीसी ऑन रखना पड़ता है, उसके लिए उतने टाइम पीसी ऑन रखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग रास्पबेरी पाई ले सकते हो। रास्पबेरी पाई कितने का आता है? 4,500 3,000 के आसपास वगैरह आता है। बट इमेजिन तुम्हारा खुद का, यू आर नॉट बाउंडेड बाय एलेक्सा। घर वाले भी थोड़ा खुश हो जाएंगे। सो यू कैन डेवलप ऑल दिस थिंग्स, एंड ऑल दिस थिंग्स आर अगेन जस्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तुम लोग सारी चीज एक में करने की कोशिश नहीं करने का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट अलग रखो, इसका अलग रखो, प्रोलॉग वगैरह रखोगे तो अलग ही लेवल पे तुम लोग काम कर सकते हो। कोई बनाने वाला है क्या जारविस घर पे खुद का है?
Anyone planning to develop? Hello class. किसी को बनाने का क्या खुद का जारविस? I can guide. And actually I can guide. Okay, so Shubham is saying, one is saying yes, बनाना है करके. What about others? Okay. अगर जो कोई सीरियसली इंटरेस्टेड रहेगा ऐसा कुछ बनाने के लिए, तो तुम लोग एक काम करना, तुम लोग अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ अपना, एंड प्लीज इंक्लूड ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड. उसमें मुझे भी ऐड कर देना. मैं तुमको बता दूंगा उस ग्रुप के अंदर कि हाउ यू कैन डेवलप योर ओन जारविस एंड ऑल. बना लेंगे. घर पे ही है, बनाने में क्या प्रॉब्लम है? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है. दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. आज के डेट में बहुत सिंपल है. सो कौन बनाने वाला ग्रुप? हु विल फॉर्म अ ग्रुप फॉर दैट? हाँ ओके अमन, यू कैन. अमन ग्रुप बनाएगा. जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ऐड कर लेना. लिखे जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको ग्रुप में मत डाल देना, जबरदस्ती सबको मत पढ़ना. 5 स्टूडेंट्स भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अपना अपना बना लेंगे जारविस. नो इश्यूज. और उसको नाम अलग दे देंगे कुछ अपना. यू कैन गिव एनी नेम. ओके. तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, हाउ यू कैन इंटीग्रेट एंड ऑल. तो कोई भी टेक्नोलॉजी सिंगल टेक्नोलॉजी से बनता नहीं है. तो तुम लोग का रहेगा सर हमको घर खुद का कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम कैसे चाहिए रहेगा, तो कुछ बड़ी बात नहीं है. तुम लोग तुम्हारे खुद के खुद का भी अपना सर्वर वगैरह बना सकते हो. और तुम में से कितने स्टूडेंट्स को नया रास्पबेरी पाई के बारे के स्पेक्स पता है? दैट अ न्यू रास्पबेरी पाई अभी जो है दैट कम्स विथ 4 GB रैम एज वेल एज 8 GB रैम ऑल्सो. 2 GB रैम के साथ भी आ रहा है. किसी को पता है कि इसके बारे में कुछ? Yes, sir. ओके. तो रास्पबेरी पाई के बारे में तुमको पता है. व्हाट अबाउट जेटसन नैनो? जेटसन नैनो किसी को पता है क्या? जेटसन नैनो. एनीवन? को भी नहीं पता जेटसन नैनो के बारे में? ठीक है. जेटसन नैनो अभी पहले एक टाइम पे उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बट नाउ डेज उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट कितना 9,500 तक नीचे आ गया है. इट्स नॉट दैट कॉस्टली ऑल्सो. जेटसन नैनो का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि तुम लोग रास्पबेरी पाई की जगह पे जेटसन नैनो किट खरीद के तुम लोग खुद का AI बॉट बना सकते हो, विच कैन डू सम कंप्यूटर विजन बेस्ड बॉट वगैरह सब. अच्छा रहता है. सो नॉर्मली जब स्टूडेंट्स अगर रास्पबेरी पाई विथ हायर कॉन्फ़िगरेशन परचेस करने की कोशिश करेगा, तो मैं बोलूँगा कि तुम लोग एक बार इसको भी देख लेना. जेटसन नैनो करके आता है. ओके. लेट मी टेल यू द नेम. ओके, आई विल कॉपी पेस्ट द नेम ऑन आवर ग्रुप ओनली, सॉरी चैट, तो आइडिया आ जाएगा. तो बेसिकली जेटसन नैनो इज अ कंट्रोलर which is having 128 I guess CUDA score cores. तो बेसिकली अगर इतने CUDA GPU है उसके अंदर, 128 CUDA कोर्स का GPU है, क्वाड कोर है प्रोसेसर CPU, उसके अंदर 4 GB LDDR4 रैम है, एंड सो ऑन. तो बेसिकली इट इज एज गुड एज अ मिनी कंप्यूटर फॉर कंप्यूटर विजन बेस्ड AI एप्लीकेशंस.
अगर तुम लोग ये अफोर्ड कर सकते हो तो इसके बेस पे तुम लोग बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, तो एंड सो ऑन। ओके शुभम इज नाउ, इट्स अ गुड क्वेश्चन शुभम। शुभम इज सेइंग कि मैं काफी ऑबिट चला गया तो मुझे सीधा अंदर लेके आया सब्जेक्ट में। Shubham is asking, sir, when our same three exams will be there? Sorry, Shubham, I don't know. It's a question whose answer I don't know. सिलेबस तो खत्म होने दो, UT2 तो होने दे, सीधा सेम थ्री एग्जाम्स। बट यस, सेम थ्री एग्जाम होंगे तुम्हारे इस टाइम, क्योंकि बीई के ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए हैं। अगर बीई के ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए तो तुम्हारे भी ऑनलाइन एग्जाम्स मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे, कब वो नहीं पता। ठीक है क्लास, डू यू वांट मी टू शेयर, और इसलिए कि तुमको और कोई जैसे जैसे गूगल हम कह रहे हैं पूछा था कि हाउ टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, डू यू वांट क्वेश्चन फॉर समथिंग एल्स? शुभम अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम आफ्टर दिवाली होंगे क्या होंगे किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक कोई किसी और कमेंट नहीं कर रहा है ठीक से। किसी को नहीं पता कि कोविड का क्या होने वाला है, डिटेक्शन मतलब ट्रेन चालू होने वाले हैं या नहीं भी होने वाले हैं, नो वन नोज एनीथिंग। अगर ट्रेन 100% कैपेसिटी में शुरू हो गए तो ऑफलाइन एग्जाम के बारे में मुंबई यूनिवर्सिटी सोच सकता है। अगर ट्रेन चालू नहीं है तो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम के बारे में सोचने से पहले 2 बार खुद सोचेगा, क्योंकि स्टूडेंट ट्रैवल कैसे करेंगे ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। शुभम अलग लेवल पे चला गया, पेशेंस आर गेटिंग लेस। कोई बात नहीं शुभम, थोड़े सा हो सकता है, होता रहता है, कोई बात नहीं। शुभम हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं आराम से, क्लास के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते। बट आई नो पेशेंट्स आर गेटिंग लेस, सबके साथ हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। Okay class, do you want me to discuss any other example on this thing, or you have any query? See, AR and VR जो है ना शुभम, अमन is asking about AR and VR technologies. See, AR and VR technologies जो है ना वो सर्वर क्लाइंट साइड बेस्ड नॉर्मली नहीं होते हैं। दोज आर लाइक की ओनली वन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट है जो भी कुछ रहेगा वेब पे, और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज नहीं होते AR VR में। वो एक अपना खुद का अलग से मैच्योर्ड फील्ड है, सो वो उसका एग्जांपल नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ जावास्क्रिप्ट से भी AR VR हो जाता है, पॉसिबल है। ए फ्रेम करके एक चीज है, चेक कर लेना, ए फ्रेम, इट इज यूज फॉर AR एंड VR। नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए, अभी नहीं लेक्चर के बाद चेक करना, ए फ्रेम करके होता है। ए फ्रेम में यू कैन इम्प्लीमेंट AR एंड VR वगैरह आसानी से हो जाता है। अगर तुम्हारे पास वो गूगल किस पे, अमेजोन पे मिलते हैं ना 200 रुपए वाले गूगल कार्डबोर्ड वगैरह मिलता है, वो भी रहेगा, और तुमको ये बेसिक जावा ए फ्रेम का कोडिंग तुम लोग देखोगे तो इजीली यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट VR वगैरह, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी भी सिंपल है। बट AR, आई गेस AR विल बी फ्यूचर ऑगमेंटेड रियलिटी, ऐसा मुझे लगता है। ओके क्लास, last 10 15 minutes are remaining, so platform is open for you to ask queries or something like that, और इफ यू वांट कि अगर सर ये एग्जांपल है इसमें बताओ आप सारी टेक्नोलॉजी से कंबाइन होते हैं तो आई कैन टेल यू। बेसिकली टुडे आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि सारा कंबाइन कैसे होता है। दीज आर नॉट pieces just kept together in slots, these are linked to create a next generation or next technology applications। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी अमन, आई विल रिकमेंड टू गो विथ AR नॉट विथ VR। अगर इंजीनियर्स को जाना है तो दे शुड गो विथ AR नॉट विथ VR। लीव VR टू नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, AR में जाओ। VR में क्रिएटिविटी और बाकी सारी चीजें को ज्यादा लगता है, कोडिंग इतना जरूरत नहीं लगता जितना AR में लगता है। सो AR इज गुड। इन AR
AR is basically a combination of computer vision plus you can do many things rule based and number of things. AR काम का है अपना, VR को भूल जाओ, leave it to non engineering students. When it comes to AR, AR में फिर सब कुछ आता है, web technologies and everything comes into there, including computer vision and all. Okay, class? Okay, good. Anything else? Yes, class? Any other? Yes? I just have a small query, like normal. Yes, Athar. Yes, In Athar. latest model of the cars of MG Hectors and all, like car can detect which person is sitting in which place, and it can communicate with people. So how it is detecting without any sensors? सी कैसा रहता है ना, अगर तुमको चेक करना है कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा हुआ है, तो या तो उसके पास कैमरा रहेगा, वन थिंग, कि और वो बताएगा, पता चलेगा कि कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा है, दिस इज वन थिंग. Yes. तो उधर कैमरा वगैरह कुछ है क्या उस कार के अंदर? छोटा कैमरा है क्या? नहीं, सामने नहीं है, फ्रंट पे, अंदर नहीं है कैमरा. तो ऊपर कहीं तो भी है क्या? नहीं. तो विदाउट कैमरा इट डिटेक्ट्स कि कौन कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा हुआ है. हाँ, देन फ्रंट सीट पे अगर आप सम बैठे स्टीयरिंग बायोमेट्रिक व्हील पे, थिंग्स. नहीं, हाँ. फ्रंट व्हील पे बैठे तो स्टीयरिंग व्हील पे कोई बायोमेट्रिक नहीं है ना. Like you're just sitting on the seat, nothing else, and it communicates. So it detects by weight or anything else. सी मैंने कार देखा नहीं है, बट इट्स लाइक कि प्रेशर सेंसर्स वगैरह भी होते हैं, तो प्रेशर सेंसर्स कैन टेल यू. सॉरी, पीजो इलेक्ट्रिक वाला से सेंस करेगा क्या सीट का वेट? कर सकते. हाँ, प्रेशर सेंसर्स भी आते हैं कि बाबा अगर वेट अगर तुम्हारा, But same person का See, weight differ one हो thing is सकता है like- ना. नहीं, it प्रेशर detects सेंसर क्या person, करता है, सिर्फ चेक करता है कि वेट बढ़ गया, मतलब वहां पे कोई तो बैठा हुआ है. हाँ but हाँ, देन सी मैंने वो वीडियो देखा नहीं, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा. अगर देखूंगा एक बार तो मैं कुछ बता भी सकता हूँ कि क्या हो सकता है. सेंसर बेस्ड अगर रहेगा तो प्रेशर से पता चलेगा कि बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे नहीं बैठा हुआ है. दैट थिंग कैन but बी which डिटेक्टेड, person बाकी is नहीं sitting होता. on that seat, वो प्रेशर सेंसर से समझेगा कि ये सीट पे बैठा है कोई. But देख, अगर कौन सा person कैमरा नहीं, कैमरा वगैरह रहेगा तो डिटेक्ट करना आसान है. अगर कैमरा नहीं है देन दे माइट यूज अनदर थिंग्स लाइक बॉडी थर्मल सेंसर्स वगैरह होते हैं कि बॉडी हीट के अकॉर्डिंगली भी चेक कर सकते हैं, और देयर माइट बी अदर क्राइटेरिया आल्सो. वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं हम पता. लोग कुछ पर्सन डिटेक्ट कर सकते हैं ना, कि हाँ नहीं इधर नहीं पर्सन. नहीं, हीट हर एक पर्सन का हीट सिग्नेचर अलग अलग हो सकता है. ओके. फॉर एग्जांपल अगर तू देख रहा, नॉर्मली कैसा रहता है कि तेरा बॉडी का सिस्टम रहता है, तो आज तूने तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज का हीट उतना ही रहता है, वो आगे पीछे नहीं होता है. ओके. अभी कैसा है कि जैसे भी एक रिसर्च चल रहा है, रिसर्च कैसे चल रहा है कि तेरे बॉडी का थर्मल स्कैन लेके बताएंगे वो लोग कि तेरे को बॉडी के कोई पार्ट में कैंसर सेल्स है क्या, मतलब Okay. इन फ्यूचर 4 साल के सेल कैसे तेरे को कैंसर हो सकता है. हाँ. तो ये सिर्फ थर्मल कैंसर पता चलता है. अब वो तो रोज चेंज होने वाला चीज नहीं रहेगा ना, भले तू कुछ भी खा, सो नहीं सो, तू क्या कर क्या है, उसको फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है. वो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, तो ऐसे भी टेक्नोलॉजीज है जिससे But तू सभी आइडेंटिफाई कर सकता है. तो हर एक पर्सन का अलग अलग हो सकता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है. यहाँ पे मतलब दुनिया एक नेक्स्ट लेवल पे गई है. हमको जितने सेंसर्स पता है ना, वो सेंसर्स Yes. यूएस और यूरोप में स्कूल के बच्चे यूज करते, कॉलेज के बच्चे यूज नहीं करते. मतलब तुम लोग यहाँ पे आईओटी और तुम्हारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो चीजें कंप्लीट करोगे ना, इसके आईओटी के मिनी प्रोजेक्ट वगैरह सब रहता है, वो लोग वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी नहीं करते. दे आर लाइक कि इतनी बेसिक चीजें हम लोग नहीं करते. एंड इवन अपना सिलेबस आईओटी का अगर सिलेबस है ना, फिर आईओई का बच्चों का लास्ट टाइम का मिनी प्रोजेक्ट देख रहा था, तो वो सारी चीजें आज के रेट में स्कूल के बच्चों को सिखाते इंडिया में भी, इवन इन इंडिया. ओके. तो मतलब दुनिया नेक्स्ट लेवल पे गई है. तो मुझे नहीं पता, बट मैं तुमको बताया वैसे हो सकता है. मतलब आज के डेट में वो भी चल रहा है कि थर्मल स्कैन से भी लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग.
वहां पे फिर कुछ अलग अलग लेवल पे कंप्यूटर विजन या डीप लर्निंग लगता है। मुझे भी वही डाउट था तो कैसे कर रहे हैं। इट्स लाइक तो तो स्टेयरिंग व्हील पॉसिबल पे है। हाथ भी नहीं रखेगा तो भी वो समझ जाता। कोई कुछ तो सेंसर रहेगा। हाँ, अगर कैमरा रहेगा तो कैमरा रहेगा, नहीं तो काइंड ऑफ थिंग्स हो सकता है। थैंक यू सर। ओके बेटा, बट ये अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं था, इट्स ओके, बट अच्छा है, यू आर क्यूरियस अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स गुड। अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ पूछना है क्या किसी को? एनीवन? यस क्लास। अगर तुमको नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई एक मुझे आंसर कर देना यहाँ पर भैया। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, यू टेल मी द आंसर। ये जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है वो किस पे बना हुआ है पता है तुम लोगों को? इंस्टाग्राम के सर्वर साइड पे कौन सा कोडिंग चलता है? इज इट जावा और पाइथन और डॉट नेट, क्या चलता है? यस क्लास। पाइथन। एनीवन एल्स? इट्स पाइथन, वो पाइथन फ्रेमवर्क है। तो मतलब कैसा है कि उसका फ्रंट एंड तो तुम लोगों को तो मोबाइल एप्लीकेशन से दिखता है ना, ये वेब एप्लीकेशन दिखता है, बट बैक पे पाइथन चल रहा है, मैं राइट? तो उन लोगों ने भी क्या चालू किया है, अभी जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं ना, उन लोगों ने कैसे किया है कि मैं सिर्फ पाइथन बोलूंगा तो पाइथन नहीं चलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका जो पाइथन रहेगा या जावा रहेगा ना, उसके साथ वेब एप्लीकेशन को जोड़ देते हैं। सो दे आर लाइक कि तेरे को वेब एप्लीकेशन बनना है तो पाइथन में सपोर्ट अवेलेबल है। मतलब क्या, हाउ दिस थिंग्स विल इंटीग्रेट विथ ईच अदर, कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वो खुद बना के देते हैं। सो फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट भी नहीं, पास्ट में भी अपना जो सब्जेक्ट है वो लिंक था, अभी वो नेसेसिटी बन गया, इसलिए उन्होंने सब्जेक्ट में सारी टेक्नोलॉजीज डाल दी है। नाउ इट इज मस्ट दैट यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, अदरवाइज तुम लोग एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे, मतलब तुम लोग प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं बना सकते। एंड तुम लोग अगर उसको प्रॉपरली, वो जो फ्रेमवर्क होता है, जैंगो फ्रेमवर्क बोलते हैं, डिजैंगो फ्रेमवर्क बोलते हैं, और एक कौन सा है, फ्लास्क है ना, हाँ, ये दोनों भी फ्रेमवर्क है जहाँ पे HTML और पाइथन को कम्युनिकेट होता है आपस में। मतलब यहाँ पे पाइथन कोडिंग रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और यहाँ पे HTML कोडिंग रहता है, तो HTML भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग भी है, और दोनों को लिंक किया गया है। तो ऐसी चीजें चल रही है, तो दिस इज प्रेजेंट, मतलब ये ऑलरेडी पास्ट है, और वो पास्ट हम लोग अभी भी जी रहे हैं। सो थिंग्स आर लाइक दैट ओनली। तो तुम लोग को ये सब्जेक्ट बहुत प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इस लैंग्वेज के बेनिफिट क्या है, और इसको हम लोग कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं वगैरह, वो सब चीज। ओके क्लास, एनी डाउट? सो क्लास, if you have doubt then feel free to ask, otherwise that's it for today. Have a nice day, कल मिलते प्रैक्टिकल में फिर, where we will do those Haskell assignments, Haskell का यूनिट कंप्लीट करेंगे हम लोग कल, सिंपल है। चलो गाइस देन, अगर कुछ क्वेरी है तो पोस्ट करो, थैंक यू अदरवाइज सर। पूछो। ओके।